guys, my name is Divya and welcome to another video. So before heading to our next video, I recommend you to watch my previous video of this series as that will help you to set context for this video. So without much delay, let's start our next topic. And our next topic is definition of reproduction. What is reproduction? Reproduction क्या है? It is a biological process in which organisms give rise to offspring similar to itself. Okay, it is a biological process. What is this? It is a biological process in which organisms give rise to an offspring similar to itself. And why organisms reproduce? Organisms को reproduce होने की जरूरत क्यों पड़ी? To maintain life on planet, variations and to maintain continuity of species. इसमें कुछ ऐसा difficult नहीं है. These are the definitions of reproduction. Why organism reproduce? उनको बताना है कि क्यों reproduce हो रहे हैं, reasons बता रहे हैं. And then reproduction depends on reproduction किस चीज के ऊपर depend करता है? Internal physiology of animals, कि उनकी internal physiology कैसे है, how they respire, how they excrete, how they circulate. Habitat and other factors like temperature, it can temperature पे भी depend करते हैं reproduction. And the types of reproduction. Reproduction two types का है. There are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. And in this video we will learn in detail about asexual reproduction, definition of asexual reproduction and types of asexual reproduction. So there are no involvement of gametes in asexual reproduction. इसमें कोई gametes का involvement नहीं होता है. And it is a uniparental process. Uni means single parental process. Okay. So next is sexual reproduction. Involvement of gametes. इसमें gametes का involvement होता है. And it can be uniparental or biparental. Okay, so in this video we will learn in detail about asexual reproduction. What is asexual reproduction and what are the types of asexual reproduction? Alright, let's understand what is asexual reproduction. What is the definition of asexual reproduction? A single individual is capable of producing offspring. A single individual is capable of producing offspring that are not only identical but also exact copy of their parents. ऐसे organisms जो identical तो similar होते ही होते हैं और same to same कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल होते हैं. जैसे हमने हमेशा से एग्जाम्पल पढ़ा है किसका, अमीबा, हाइड्रा, ये सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और ये कैसे होते हैं, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं इनके ऑफस्प्रिंग्स. ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ asexual reproduction. A single individual is capable of producing offspring that are not only identical but also exact copy of their parents. Now there are few points for asexual reproduction. No involvement of gametes, कोई involvement नहीं होता है because involvements of gametes are present in sexual reproduction. And then no fertilization because it is a uniparental process, तो इसमें कोई भी fertilization नहीं होता है. Next, fast process in the sexual reproduction, बहुत ही fast process होती है, ना इसमें gametes का involvement होता है, इसीलिए क्या होती है, बहुत ही fast process होती है in the sexual reproduction. Mitosis process takes place, इसमें क्या होती है, mitosis होती है. ठीक है. And नो वेरिएशंस, कोई भी वेरिएशन नहीं आते हैं क्योंकि जो प्रोजेनी है वो किसके सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो कुछ चेंजेस ही नहीं आए, वेरिएशंस ही नहीं आए. जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, हाईली वेरिएशंस आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोन फॉर्म्स. ओके, व्हाट इज क्लोन? Clone is used to describe such morphological and genetical similar individual. जो asexual reproduction से जो offspring बनते हैं, जो progeny होती है, वो क्या होते हैं, clones होते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो कैसे होते हैं, genetically and morphologically कैसे होते हैं, similar होते हैं to their parents. तो इसे हम क्या बोलते हैं, clone बोलते हैं. Okay, now we will learn about the types of asexual reproduction. Okay, so now types of asexual reproduction. There are different types of asexual reproduction.
fission, fragmentation, budding, regeneration, spore formation and vegetative reproduction. So firstly we will know about the fission. Fission are two types, binary fission and multiple fission. बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल्स बनाती है, लाइक दिस. इफ यू विल टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा, तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होगा और पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाएंगी. इट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन. एग्जांपल इज अमीबा. एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन. एन एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम. इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर के मल्टीपल डॉटर सेल्स बना देती है. एंड सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पायरोगायराइड सी एनिमोन्स. इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट सेल होती है वो डीअटैच हो जाती है, डॉटर सेल डीअटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट सेल. एंड एग्जाम्पल इज स्पायरोगायराइड सी एनिमोन्स. थर्ड इज बडिंग. बडिंग टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग. जब पेरेंट सेल से बाहर की तरफ बर्ड निकलती है तो उसको एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं. जब अंदर की तरफ बर्ड आती है तो इन्हें हम इंटरनल बडिंग बोलते हैं. एंड मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बडिंग इज हाइड्रा एंड यीस्ट. एंड इंटरनल बडिंग, एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल बडिंग इज स्पॉन्जिला. एंड फोर्थ इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का एग्जांपल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. इसमें जो एक डेड सेल होती है वो दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखती है. उसकी सेल्स में रीजनरेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन. इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड एग्जांपल है इसका हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. एंड देन स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है. एग्जांपल है राइजोपस एंड पेरिसीलियम. एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन रूट स्टेम एंड लीफ के थ्रू होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये टू टाइप से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है. जैसे कि जो स्वीट पोटैटो होता है वो किससे नया प्लांट डेवलप होता है, उसकी रूट से. एंड जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो किससे बनता है, उसकी स्टेम से. और जो ब्रायोफिलम होता है वो किससे बनता है, प्लांट की लीफ से. क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो रूट स्टेम एंड लीव्स के थ्रू होता है. एंड आर्टिफिशियली कैसे हम कर सकते हैं एक प्लांट से नया प्लांट, बाय कटिंग. जैसे हमने रोज में देखा है, हम उसकी स्टेम कट करते हैं और हमारा नया प्लांट, नया प्लांट ग्रो हो जाता है. इट्स कॉल्ड कटिंग. एग्जांपल इज रोज एंड सुगर केन. ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.